اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی رکنیت سیشن کے اختتام تک معطل کر دی گئی۔ اسپیکر نے طارق بشیر چیمہ کی رواں سیشن تک رکنیت معطلی کی قرارداد ایوان میں پیش کی، جو منظور کر لی گئی۔ ایاز صادق نے کہا کہ کل قومی اسمبلی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس سے بہت سے ممبران کی دل آزاری ہوئی۔ اس حوالے سے متعدد ارکان مل کر بیٹھے اور شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ طارق بشیر چیمہ کو معطل کرنے کا سب کا متفقہ فیصلہ تھا۔ قومی اسمبلی میں گزشتہ روز طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پارلیمنٹ سے متعلق میرا خدشہ سیکیورٹی کا ہے۔ ایک پارٹی سے منسلک لوگ ایوان میں آئے اور نعرے لگائے۔ گیلری میں بیٹھے لوگ نعرے لگائیں گے تو یہ ایوان کی توہین ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کا احترام اور تقدس یقینی بنایا جانا چاہیے۔ گیلری میں مہمان ضرور آئیں لیکن ان کی تعداد کو کم کیا جائے گا۔ خدشہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ if you go back to the 90s یا آج سے 15-20 سال پہلے ممبرز کے پاس ایشو کرانے کے اوپر ایک تعداد جو تھی وہ مقرر کی ہوئی تھی، اس سے زیادہ آپ کا پاس ایشو نہیں کرا سکتے۔ تو یہ اسپیشلی اس وقت جو خدشات ہیں ہمیں سیکیورٹی کے، اس کے اندر یہاں پہ ریسٹرکشن لگائیں۔ اس دن بھی میں نے اپنے تقریر میں کہا 100-125 بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہی پارٹی سے وہ منسلک بندے یہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے ہاؤس کی وہ وائلیٹ ہوتی ہے جب گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ہاؤس کے اندر جو ہے نعرے لگائیں یا ہاتھ ملائیں یا بات کریں۔ یہاں اگر میں یہاں کھڑو کے ان صاحبان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ادھر نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری نے علی پرویز ملک سے حلف لیا۔ تقریب میں وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ نون لیگ کے رکن اسمبلی کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا عہدہ دیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری نے علی پرویز ملک سے حلف لے لیا ہے۔ تقریب میں وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ نون لیگی رکن اسمبلی کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا عہدہ دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ذمے قرضوں پر بھاری سود کی ادائیگی معیشت پر بھاری بوجھ قرار دے دیا ہے۔ اخراجات میں کمی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال قرضوں پر سود 9,787 ارب روپے تک جانے کا خدشہ ہے، جبکہ رواں مالی سال قرضوں پر سود کی ادائیگی 8,371 ارب روپے تک بھی جا سکتی ہے۔ اس سال بجٹ میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کا ہدف 7,303 ارب روپے رکھا گیا تھا، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی وفاقی حکومت کی خالص آمدن سے بھی 205 ارب روپے زیادہ رہی۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے انتہائی بلند بیرونی مالی ضروریات اور بلند شرح سود قرضوں کی پائیداری کے لیے خطرناک قرار دے دی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال قرضوں کی شرح 72.1% سے کم ہو کر 70% پر آ جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے چین کے 15 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی کی مدت میں 5 سال کی توسیع کے آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ سی پیک کے تحت 15.36 ارب ڈالر سے توانائی کے منصوبے لگائے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق قرض کی ادائیگی میں توسیع کے لیے چینی حکومت کی آمادگی حاصل کرنا ہوگی، جبکہ چین توسیع پر مان گیا تو 5 سالوں کے لیے ٹیرف 1 روپے 1 پیسہ سستا ہو سکتا ہے۔ 5 سالہ توسیع کی صورت میں قرض میں 1 ارب 36 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جون کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے 4 روزہ دورے کے لیے شیڈول تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سی پیک سے متعلق اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جون کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے 4 روزہ دورے کے لیے شیڈول تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم سی پیک سے متعلق اہم ملاقاتیں بھی کرنے جا رہے ہیں۔
एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के 4 रोज़ा दौरे के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म CPEC से मुताल्लिक अहम मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। OGDCL का तेल और गैस की मुकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान सामने आया है। तर्जुमान के मुताबिक ज़िला कुर्क नंबर 10 से गैस और खाम तेल के ज़खायर में इजाफा कर दिया गया है। इजाफी पैदावार से तेल की मजमूई पैदावार बढ़कर 1870 बैरल यौमिया तक पहुँच गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे अशफाक मुगल। जी अशफाक। जी बिल्कुल, तर्जुमान OGDCL की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि तेल और गैस की मुकामी पैदावार में इजाफा हुआ है। ये बताया गया है कि OGDCL ने जिला में नशा कुआं नंबर 10 से गैस और तेल के नए ज़खायर मिले हैं और जिसकी वजह से जो है वो तेल मजमूई पैदावार बढ़कर 1870 बैरल यौमिया तक पहुंची है, जबकि जो गैस की पैदावार जो उसके बाद मुल्क की जो मजमूई तौर पर इसकी पैदावार जो है 70 लाख क्यूबिक फीट यूरोपिया से तजावज़ की गई है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि गैस की पैदावार को सोई नादरन नेटवर्क जो उसमें शामिल किया गया है। तेल और गैस की अज़ाफ़ी पैदावार से सालाना कमी का जो है वो। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। बिजली कंपनियों की सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की नेप्रा में समाअत हुई। सार्फिन पर ₹1.45 फी यूनिट बोझ पड़ेगा। नेप्रा हुकाम का कहना है कि सहमाही एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगाने की तजवीज़ है। कोरंगी एसोसिएशन ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पुलिस की वर्दी पहन ली। मरियम नवाज की एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि आपसे इजहार जहदी के लिए एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म पहन कर आई हूँ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है, जिसमें आज तक माशाल्लाह 70,000 नौजवान जो हैं वो ट्रेन हुए हैं। मरीम नवाज का कहना था कि आप लोग कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब हुई है। कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है, क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट होने वाले से खिताब में कहा कि जब आपके पास कोई मजलूम आए तो उसकी दाद रसी करनी है। वो वक्त दूर नहीं कि जब पुलिस पे लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग सुकून से अपने घरों में सोएंगे। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। विफाक के फंड्स पर सूबा चलाने वाले शेख चिल्ली शेखियां ना बखेरे। केपी हमेशा पंजाब से गंदम और आटा खरीदता रहा है। फर्क यह है कि अब पंजाब से गंदम और आटा स्मगलिंग की सहूलत दस्तयाब नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का केपी के वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब से गंदम खरीदने की इजाज़त पर आपको एहसानमंद होना चाहिए। पंजाब गंदम खरीदने की इजाज़त ना दे तो केपी में एक रोटी 50 रुपए की मिले। पंजाब की आवाम ने 4 साल बुज़दार गैंग की शक्ल में अज़ाब भुगता है। आपको पंजाब की बजाय केपी के गरीब आवाम की फिक्र करनी चाहिए। मरियम नवाज किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज लेकर आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर तो पख्तूनों को 400 रुपए का रिलीफ देने को भी तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत का किसानों की फलाह बहबूद के लिए तारीखी मंसूबा सामने आया है। किसानों को मिडलमैन से छुटकारा दिलवाने के लिए आड़ती और कमीशन माफिया का खात्मा करने की तैयारी कर ली गई। 12.5 एकड़ से कम ज़राई ज़मीन वाले किसान कार्ड के अहल होंगे। किसानों को बिला सूद कर्ज भी दिया जाएगा। बीज और खाद की खरीदारी के लिए फी सीजन 1.5 लाख तक कर्ज भी मिल सकेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इदरीस शेख से जान लेते हैं। इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड जारी करने जा रही है, जिसके तहत किसानों को मिडलमैन से छुटकारा मिलेगा। आड़ती और कमीशन माफिया का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा। 12.5 एकड़ से कम ज़राई ज़मीन रखने वाले किसान जो है वो किसान कार्ड के अहल होंगे और पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूबे के तहत किसानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। किसानों को बीज और खादों की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख फी सीजन
जो है कर्ज दिया जाएगा। और इब्तदाई तौर पर पंजाब के 5 लाख किसानों को पहले पाओ स्कीम के तहत जो है किसान कार्ड जारी होंगे। पंजाब जो है किसान कार्ड पर 75 अरब रुपए लागत आएगी और किसानों को फी एकड़ 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर अदा करना होगा। पंजाब बैंक किसानों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के रिकॉर्ड में मौजूद ज़रूरी ज़मीनें रखने वाले किसान इस स्कीम के तहत अहल होंगे और कर्ज की रकम सिर्फ बीज और खाद की खरीदारी के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। बीजों और खादों के डीलर्स को भी बैंक ऑफ पंजाब रजिस्टर्ड करेगा और जो है सिर्फ रजिस्टर्ड जो फर्म्स हैं, डीलर्स हैं, उनसे ही किसान खाद और बीज खरीद सकेंगे और कर्ज अदा करने वाले किसान ही आइंदा साल के लिए अहल होंगे। पंजाब हुकूमत ने मनसूबे पर अमल दरामद और जायजे के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है और बैंक ऑफ पंजाब ने डीलर्स की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है। 10,000 डीलर्स अब तक रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं और बैंक ऑफ पंजाब को सूद की रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब का किसान कार्ड धोखा करार दे दिया है। जागीरदारों की ज़मीनों को आम किसानों में तकसीम करने का मुतालबा भी कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि 400 अरब का ऐलान करप्शन का नया धंधा है। मुल्क पर मुसल्लत माफियाज हर चीज़ में करप्शन करते हैं। हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा फराहम करना आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। गंदम के मामले पर रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। जमात इस्लामी किसानों को उनका हक दिलवाएगी। पंजाब में किसानों से राब्ते के लिए कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। $1 बिलियन की इंपोर्ट उस सूरत में जब मिलियंस की तादाद में गंदम मौजूद थी कैसे की गई, वो कमेटी अब कहाँ गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया और नए इश्यूज के ऊपर बात शुरू कर दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मिले हुए हैं। ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि हम इसके नतीजे में आटा सस्ता, ये धोखा देने वाली बात है। आटा सस्ता करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और गंदम के प्रॉपर रेट देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 76 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी और धोखा दिया और अब ये कह रहे हैं कि हम 400 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। हम ये बात जानते हैं और हुकूमत कह क्या रही है, वज़ीर आला साहिबा क्या फरमा रही हैं कि हम करप्शन खत्म करना चाहते हैं। ये 400 अरब रुपए का जो पैकेज है ये करप्शन का नया धंधा है। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। जस्टिस मुनीब अख्तर कल कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फबरदारी सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गैर मुल्की दौरे के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। है महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मौसम की शिद्दत में इजाफे पर शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी गई है। नुमाइंदा न्यूज़ इकरा लियाकत इस वक्त सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी इकरा। जी बिल्कुल, बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की, जो कि मौसमी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी तजावज़ कर चुका है। ये जो दर्जा हरारत की सूरत हाल है कब तक रहेगी? पंजाब के अलावा सिंध और पूरे पाकिस्तान में हीट वेव के भी जो है वो खदशात बढ़ चुके हैं। तो ये कितने दिन तक इस तरह की सूरत हाल रहेगी, इस सारी सूरत हाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद साहब से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मई का जो एंड के जो डेज होते हैं और जून के जो स्टार्ट के जो तकरीबन एक वीक होता है, इनमें इस तरह की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बात होती है। हर साल ही इस तरह के टेम्परेचर जो हैं वो आते हैं। लास्ट ईयर्स में अगर आप देखें तो सिंध के अंदर 50 और 150 प्लस की जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई। तो इस साल भी अभी तो 40-50 की वैल्यूज़ वहाँ पर नहीं आई, लेकिन अब आइंदा जो डेज़ आ रहे हैं मई में, इसमें चांसेस हैं कि ये 50 और 50 प्लस के करीब करीब जो नॉर्थ सिंध के जो टेम्परेचर हैं वो चले जाएँ। शहरियों को यही कोशिश करनी चाहिए कि दोपहर के टाइम कम से कम बाहर निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जिसकी जो है क्या देखें कम हिद्दत वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें। शहरियों को चाहिए कि वो ज़्यादा धूप में जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और कम हिद्दत वाली जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकले, ताकि ये जो हीट वेव का सिलसिला है 10 जून तक 10 जून के बाद जो बारिशों का सिलसिला मुतवक्किल है, तब तक एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। जी शुक्रिया इकरा।